Our new chapter, chapter 2, health of civics. Those who don't have the book, see on the screen. Yes, Vaibhav, start reading. Yes, ma'am. Chapter 2, Health. Being healthy. It is important for us to understand the meaning of health. Health does not mean not being sick or suffering from a disease. Health is a comprehensive term for the complete well-being of body and mind. Healthy people are physically fit and mentally sound. To be healthy, it is not enough to have good food, but also to have a clean environment. With individual efforts and the efforts of the government, this can be achieved. It is the responsibility of the government to provide basic amenities like clean drinking water, electricity, and pollution-free surroundings. A person staying in cramped accommodation, not having access to basic amenities or nutrients. Food is more likely to be unhealthy. Okay, stop. Government Okay. health So what do you mean by health? Health क्या होती है? जो आप अभी हो, आप अगर आपकी जो अगर आपको कोई बीमारी है तो आप हेल्दी नहीं हो। अगर आप गुड कंडीशन में हो, आप सब कुछ कर सक रहे हो, अच्छे से देख सक रहे हो, सब कुछ आप कर सक रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो आप एक हेल्दी पर्सन हो। ठीक है? हेल्थ इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म ऑफ कंप्लीट वेलबींग। मतलब आप कितने हेल्दी हो, आप कितने अच्छे से चीजें करते हो, उसको हेल्थ कहते हैं। अब हेल्थ कैसे डिपेंड होती है? हेल्थ आपकी बॉडी पे डिपेंड होती है ना। अगर मानो वेदर चेंज हुआ, आपको वायरल हो गया, आप अनहेल्दी हो गया, आपको बुखार हो गया, तो आपकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है ना। आपने कुछ गंदा खाया, कुछ गलत खाया, जंक फूड खाया, आपका पेट खराब हो गया एंड आप हेल्दी नहीं होता। ठीक है? सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हेल्थ। हेल्थ का मतलब यही बस नहीं होता कि आप कितने बीमार हो और क्या डिसीज से सफर कर रहे हो, नहीं। एक वेल बीइंग होती है, एक फिजिकल मेंटल हेल्थ जो होता है, आपका मानसिक भी सही होना चाहिए एज ट्रू ऑफ फिजिकल ऑल्सो। जितना फिजिकल सही हो है उतना ही मेंटल भी सही होना चाहिए। टुडे बी हेल्दी इज नॉट इनफ टू हैव अ गुड फूड बट ऑल्सो हैव अ क्लीन इन्वायरमेंट। अगर आपके आसपास में सफाई नहीं है, गंदगी है, तो क्या इससे ये नहीं होगा कि आप हेल्दी हो जाओगे। आपका बस आपका फूड इफेक्ट नहीं करता, आपका अलग अलग इन्वायरमेंट जहाँ आप रहते हो वो भी आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है। With individual efforts and the efforts of the government, this can be achieved. It is a responsibility of government to provide basic amenities like clean water, clean drinking water, electricity, and pollution-free surrounding. Now, it is a duty of a government that you should live in a clean environment. But I don't think so कि बस government की duty है, आपको भी अपना area clean रखना चाहिए, आपको कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, आपको healthy खाना खाना चाहिए। हाँ, वाटर की सप्लाई जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई होती है, वो सही होनी चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। So, a person staying in cramped accommodation not have basic access to basic amenities or nutritious food is most likely to be healthy. ठीक है, जो स्लम एरियाज में रहते हैं, उन लोगों के पास अच्छा खाना नहीं होता, सही इन्वायरमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से वो अनहेल्दी हो जाते हैं। ठीक है, चलो ओ स्टार्ट रीडिंग। Yes, ma'am. Government and healthcare. As per the Constitution of India, it is the fundamental right of every citizen to receive basic health care. The responsibility of improving the living standards and the public health of people lies with the state. For this, government has set up a chain of hospitals and dispensaries all over the country. Some of these hospitals are best in the country and offer latest treatment and facilities at affordable costs. Primary healthcare facilities are provided in primary health centers in both urban and rural
rural areas. Government hospitals, dispensaries, and healthcare centers are run using funds provided by the government from the taxes paid by citizens. The treatment and medicines provided at the various medical centers are free at the of cost or at minimal charges, making it accessible to economically backward classes. The health policy and welfare programs pertaining to family planning are the responsibility of the Ministry of Health and Family Welfare, which introduce new schemes for from time to time. The national health policy is an endeavor of the government to provide basic health care facilities to everyone. However, there are problems in the public health care sector being professional staff and inferior quality of service. It is for the reason that more and more people prefer to go to private hospitals and clinics. Healthcare in India. The healthcare sector is broadly divided into Done. Okay. So, as per Constitution of India, it is a fundamental right of every citizen to receive basic health care. मतलब हम सबका right है कि हमें एक अच्छी basic health care मिलनी चाहिए. Okay, the responsibility of improving the living standards for public health of the people lies with the state. मतलब ये जो healthy condition होता है वो किस पे depend होता है? हमारे state government पे डिपेंड होता है. इसमें क्या है, बहुत सारी बीमारियां होती है. आप लोगों ने देखा होगा विलेजेस में उतने सारे हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है, दवाइयां नहीं मिलती हैं. आज भी बहुत सारे विलेजेस ऐसे बैकवर्ड एरिया में है कि वहां पे हमें जब भी सर दर्द की इवन दवाइयां नहीं मिलती है ना. तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि ये सेटअप करे डिस्पेंसरी हमारे रूरल एरियाज में भी, ताकि चीजें बुरी ना हो एंड लोगों को अच्छा वो मिले. For this, government has set up the chain of hospitals and dispensary all over the country. Some of these hospitals are best in the country and offer latest treatment and facilities of affordable class. ठीक है, अभी कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. गरीब लोग जो होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. So now the government is setting that hospitals and that dispensary which everyone can afford and can live a healthy life. Primary healthcare facilities are provided in primary healthcare centers in both urban and rural areas. Government hospital, dispensary, and healthcare centers are run using funds provided by the government from the taxes paid by citizens. Now, there are many NGOs. You have seen many of the hospitals provide the free help to the people. This is by whose help? This is by we paid tax to the government, and that tax money is used to do this. है ना. ये हॉस्पिटल बनाने में या फिर कुछ भी दवाइयां लाने में, सप्लाई करने में जो पैसे यूज होते हैं, ये कहां से यूज होते हैं? गवर्नमेंट इसे प्रोवाइड कराती है. The treatment and medicine provided at these medical centers are free of cost or at minimal charge. ज्यादा चार्ज होता नहीं है and most probably it is of free of cost. The healthy policy and the welfare programs penetrating to family planning are the responsibility of Ministry of Health, Healthy and Family Welfare, which introduce new schemes from time to time. The National Health Policy is the endeavor to the government to provide basic health care facilities to everyone. ठीक है, नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी क्या है कि सबकी एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, हेल्थ केयर मिलनी चाहिए. हेल्थ केयर मीन्स अगर आप बीमार हो गए तो एक अच्छा हॉस्पिटल होनी चाहिए, दवाइयां होनी चाहिए आपके पास, है ना. अच्छा खाने के लिए अवेलेबल होना चाहिए. However, there are problems of the public health care backed by unprofessionalism, inadequate staff and inferior quality of service. It is for the reason that more and more people prefer to go to the private school. अब क्या होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आप खुद गए होंगे यहाँ, आपने रीवा का गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन सा है? संजय गांधी है ना. आप वहाँ गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा जो ट्रीटमेंट होता है पीपल का, जो वहाँ का स्टाफ होता है वो ही अच्छे से बात नहीं करता है, चीजें नहीं सुनता है, कभी कभी दवाइयां भी अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से सामने वाले को उसके लॉस फेस करने पड़ते हैं, है ना. सो देयर इज अ नीड टू बी इम्प्रूव्ड इन द गवर्नमेंट सेक्टर. Healthcare in India. The healthcare sector is broadly divided into two parts. There are two parts of healthcare sector, public and private. The public healthcare sector is controlled by the government, while the private healthcare center is owned by private entities. ठीक है, जो public healthcare center है उसको government run करती है, उसके पीछे government का हाथ होता है. बट जो प्राइवेट होता है, जैसे प्राइवेट क्लिनिक, जो छोटी छोटी क्लिनिक खुली रहती है, शॉप्स खुली रहती है, उसमें जिसने उसे ओपन किया रहता है उसी का उसमें वो हकदार होता है, वही मालिक होता है.
The public healthcare sector run government hospital, dispensary and health centers which are managed by government doctors and staff. ठीक है, government doctor and staff ही public healthcare center को run करते हैं. Most of these places are unstaffed. Lack of appropriate facilities, do not have adequate trained staff like lab technicians, nurses or paramedics. अब क्या इसका एक आफ्टर इफेक्ट हो जाता है, जो गवर्नमेंट के थ्रू रन होते हैं हेल्थ केयर सेंटर, वहाँ अच्छे स्टाफ नहीं मिलते, स्टाफ कम मिलते हैं या फिर होते ही नहीं है, जैसे लैब वाले लोग नहीं होते, डिस्पेंसरी भी कोई नहीं रहता है ना, लैक ऑफ डॉक्टर्स होते हैं. The healthcare services have not kept up with the growing population and its need, resulting in slow progress. ठीक है, अभी प्रोग्रेस उतना नहीं हुआ है कि जिससे लोगों की हेल्प हो जाए, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस में आ रहा है. क्लियर है इतना सबको? Yes, ma'am. Yes. Yes, what? Okay, Anjali, start. The healthcare facilities are not at par with the economic progress shown by India. Problems like demographics, profile of the population, modified varieties of disease, and most importantly, lifestyle related health issues demand a new approach in treatment. This approach in treatment, this demand has not been addressed appropriately. Thought the expenditure through the expenditure on healthcare has increased. On the other hand, the private healthcare sector runs on. Stop. The healthcare facilities are not per with economic progress shown by India. जो economic progress होती है healthcare sector की, वो अभी उतनी develop नहीं हुई है ना? This demand has not been addressed appropriately to the expenditure on healthcare has increased. On the other hand, the private healthcare sector runs on purely capitalist principle of payment for services. ठीक है, प्राइवेट हेल्थ केयर कैसे रन होता है, अपन जो डॉक्टर को फीस देते हैं उसी से उन लोग कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं ताकि चीजें अच्छे से मिले एंड आपकी जो ट्रीटमेंट हो वो अच्छे से हो. The hospitals are clean, organized, provide round the clock medical assistance, supervisions are adequately staffed, have the latest equipment and facilities and run professionally. ठीक है, क्या होता है, अब जो उन लोगों के पास होता है तो क्या होता है, हॉस्पिटल्स आप लोगों ने देखे होंगे प्राइवेट क्लिनिक वाले की कितने साफ होते हैं, है ना? आप वहां पे जाओगे आपको हर चीज साफ मिलेगी और ट्रीटमेंट भी बेहतर होता है, लोग बात आपकी सुनते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो टाल देते हैं, है ना? तो जो क्लॉक होता है, क्लॉक भी टाइम पे लगा रहता है, वो चलता होता है. मोस्ट प्रोबेबली आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, जो क्लॉक रहते हैं वो नहीं चलते, वो बंद रहते हैं, वो बस लगे रहते हैं बट वो चलते नहीं है. Adequately staffed, have latest equipments and facilities and are run professionally. ठीक है, उन लोगों के पास लेटेस्ट जो इक्विपमेंट जरूरी है हमारी ट्रीटमेंट के लिए वो भी होते हैं और प्रोफेशनली चीजें होती हैं कि काम के समय काम ही होता है और चीजें नहीं होती हैं. The patients do not have to go from one place to another for the various tests or investigations. आप लोग गए होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपको देखा होगा अगर आपको कोई टेस्ट बोला है, आपको इस काउंटर से दूसरे काउंटर, तीसरे काउंटर, चौथे काउंटर पे जाके चीजें पूछनी पड़ती है, तब जाके आपको कहीं वो काउंटर मिलता है, बट ऐसा प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है. द डॉक्टर ओनली एड्रेसेस कहाँ जाना है, कैसे करना है एंड किसके पास जाके आपका ये टेस्ट हो सकता है. This makes the whole experience less taxing, but it is all available for a price. पर ये सबका क्या होता है, प्राइस लिया जाता है, एक मोटी रकम ली जाती है. The cost of maintaining such facilities are high and patients are required to pay for utilizing these facilities and equipment. It is obvious that if you use another's facilities, then you have to pay for it, है ना? अगर आपको अच्छे से वो करना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा.
Most of these big private hospitals are located in urban areas, making good healthcare and accessible to people in rural areas. अब ये urban areas मतलब cities में ही इतने अच्छे private sector मिलते हैं. आप गांव में देखोगे आपको इतने अच्छे private sector वहां पे नहीं मिलेंगे. Other than public and private healthcare sector facilities, there are several hospitals and healthcare centers run by charitable trust and foundation. Most of these are run by charitable and trust and foundation, which receive partial support from government. These hospitals are smaller and provide treatment either free or nominal cost. फ्री में चीजें प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, तो चलो बताओ हेल्थ केयर कितने टाइप के होते हैं इंडिया में? किस किस सेक्टर के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे? मैम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट. वेरी गुड. Very good. The public and private one. Now, what is the public sector? Public sector क्या होता है? मैम लेकिन public sector प्राइवेट is में मैम बहुत मैम प्राइवेट सेक्टर को मैम वो जिसका ओनर है वो टाई हॉस्पिटल. तो पब्लिक सेक्टर में हमें क्या क्या फैसिलिटीज नहीं मिलती है एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर? मैम बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती है, रहती है लेकिन मिलती नहीं है. ऐसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बहुत सारी बताई ना. फॉर एग्जांपल मैम जैसे दवाइयाँ. यस मैम आपने जैसे बताया कि क्लॉक घड़ी लगी रहती है लेकिन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कि हमें जो फैसिलिटीज होती है वो बहुत डिफरेंट मिलती है. स्टाफ का भी चेंजेस रहता है ना. और जो मैम प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जमीन आसमान का फर्क है. यस ओके चलो. हेल्थ केयर इन रूरल एरिया मालूम है. क्या more than 3/4 of the population lives in rural area. Yes, you मतलब इसमें आप लोग एग्री करते हो ना कि 3/4 पॉपुलेशन जो होती है इंडिया की वो रूरल एरिया में रहती है, मींस विलेजेस में रहती है. These areas have been neglected for long and the lack of basic water, electricity, good proper diet, medical facilities are found. ठीक है, यहाँ पे हमें क्लीन वाटर नहीं मिलता बिकॉज हमें ट्यूबवेल से पानी लेने जाना पड़ता है या हैंडपंप से पानी लेने जाना पड़ता है ना. तो क्लीन वाटर तो नहीं आता क्योंकि लोग अपने घर में फिल्टर्स नहीं रखते. दे डोंट बिलीव इन फिल्टर्स. दे टेल दैट इट इज अ नाइस वाटर, बट ऐसा नहीं होता. कभी कभी उस पानी से भी लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है. इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी यू आर गेटिंग इन द cities, but in the village you are not getting that electricity, है ना. during summers there is most of the time there is a power cut. फिर गुड डाइट नहीं रहती उन लोगों की. डाइट में भी बहुत हम लेकिन इस समय में ऐसा नहीं होता है. यस हम लेकिन इस समय में ऐसा नहीं होता है. यस बट in some villages this happens. You don't get 24 hour of electricity. ऐसा एक भी दिन नहीं होगा कि आपको 24 hour बिजली मिले. Suppose for 1 hour it goes, power is cut off, है ना. So primary health centers and dispensaries run by the government are poorly managed. Okay, अब वहां पे तो आंगनबाड़ी सुना होगा आप लोगों ने, गांव में होता है. Yes, एक ही Yes. हाँ सारी लेडीज इसको रन करती हैं. हाँ लेडीज रहती हैं एंड वो बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी क्रिएट करती हैं. बट जो हॉस्पिटल्स रहते हैं जो गवर्नमेंट रन करते हैं वो भी पुअरली मैनेज रहते हैं, वो भी सही से मैनेज नहीं होते. They are plagued by rampant absenteeism of the doctors or other trained staff, acute shortage of medicine. क्या होता है? मेडिसिन की शॉर्टेज रहती है. डॉक्टर्स टाइम पे नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं, या फिर स्टाफ जो रहता है वो नहीं आता, जो सफाई करने वाला होता है वो नहीं आता. सो देयर इज द लैक ऑफ फैसिलिटीज इन द रूरल एरियाज. Above all the indifferent attitude, some of the primary health centers do not have a doctor, while most of them have lab technicians. ठीक है, कई पे डॉक्टर्स नहीं रहते. Basic facilities like labor rooms, operation theatre, laboratories are not present. बेसिक जैसे ऑपरेशन थिएटर होता है, ओटी होता है, वो नहीं रहता है. रूरल्स वाले जो हॉस्पिटल्स रहते हैं आपको लेबोरेटरीज नहीं मिलेंगी जहाँ पे वेरियस केमिकल्स में टेस्टिंग होती रहती है. ठीक है, टेक्नीशियंस नहीं रहेंगे आपके पास जो आपको इंजेक्शन लगा सके या फिर आपका ब्लड टेस्ट कर सके, नहीं होते हैं वहाँ. स्पेशलिस्ट लाइक गायनेकोलॉजिस्ट, वहाँ ब्लड भी नहीं. Pedestrians are not available in commonly health center. The lack of adequate manpower severely affects rural health care. The lack of facilities in rural areas is making people dependent on private.
ठीक है, बहुत सारी जो फैसिलिटीज होती है वो विलेज में आज भी प्रोवाइड नहीं होती जब अपन हेल्थ केयर सेंटर को देखते हैं। नाउ पब्लिक एंड हेल्थ केयर सेंटर्स, नाउ सर्विसेज, ये सर्विसेज है मतलब पब्लिक में और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज में कैसे डिफरेंस है ना। जो पब्लिक जो है, जो रन पब्लिक को कौन रन करता है, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स को कौन रन करता है? गवर्नमेंट, वेरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वेरी गुड, गवर्नमेंट रन करती है। और प्राइवेट को कौन रन करता है? मैम उसका एक ओनर खुद मैम का उसका ओनर रन करता है ना। तो चलो बताते जाओ, एक एक पॉइंट तुम लोग डिफरेंशिएट करो, पब्लिक वाला कैसे डिफरेंट है इधर प्राइवेट वाले से, प्राइवेट हेल्थ केयर। एक एक पॉइंट पब्लिक वाले में मशीन, वो प्राइवेट में मशीन सही रहती है, पब्लिक में मशीन ज्यादा खराब रहती है। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, यस वैभव, स्टार्ट डिफरेंशिएट। मैम हाँ यस यशी। मैम प्राइवेट में क्लीन रहता है और गवर्नमेंट में क्लीन नहीं होता, बहुत डर्टी केसेस होते हैं। इन्वायरमेंट, यस अक्षर। मैं भूल गया। ओके, हाँ यस वैभव। मैं भूल गया। हाँ नो नो प्रॉब्लम। पब्लिक एंड प्राइवेट, हाँ, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में। सो पब्लिक सेक्टर्स आर रन बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर्स आर रन बाय द रन बाय द मैम लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैम इस समय क्लीन है। जस्ट सी मैम गवर्नमेंट हॉस्पिटल इस समय पे क्लीन है। पब्लिक सेक्टर का क्या होता है, देखो पब्लिक सेक्टर रन बाय गवर्नमेंट ओनर गवर्नमेंट। ओके, अभी पब्लिक सेक्टर को डिस्कस करते हैं। रन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, और 10 स्टाफ आर प्रेजेंट इन द टाइम, ऑन टाइम on in government government is clean, है ना, क्लीन रहता है एनवायरमेंट। और क्या होता है से the cleanliness and hygiene is focused, इसमें ज्यादा फोकस रहता है लोगों का कि हमारी जो हॉस्पिटल है वो क्लीन रहे और हाइजीन फ्री रहे, मतलब ज्यादा बीमारियां ना पकड़े लोगों को, ठीक है। और नंबर ऑफ बेड्स, क्या होगा जी, क्या लिख रहे हैं क्या? नंबर ऑफ बेड्स आर अवेलेबल फॉर एवरीवन, ठीक है, सबके लिए होता है। नाउ यू हैव टू टेल नाउ ऑफ प्राइवेट सेक्टर, sorry it is a private number of beds are available, Yes, ma'am. not for everyone, maybe not for everyone, is the cleanliness and hygiene is not focus, है ना, नहीं होता फोकस उतना लोगों का। environment हो गया not clean, environment जो रहता है वो clean नहीं होता है ना। so now say about private sector, प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताओ आप। क्लीन yes? and the environment is clean. environment is clean और रन बाय द मैम आप प्राइवेट हॉस्पिटल में हम भरोसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी, एकदम नहीं। Run by और all वहाँ का बस फालतू खर्चा रहता है। yes अक्षर, मैम होता है। no like this is not a medicine store is stocked, मतलब मेडिसिन प्रॉपर्ली अवेलेबल होती है, नंबर ऑफ बेड सबके लिए होते हैं, प्रॉपर ओटी होता हम लेकिन है, उसमें भी पैसा लगता है। प्रॉपर ओटी होता है, लैब टेक्नीशियंस रहते हैं, ब्लड टेस्ट के लिए आपको इधर एक काउंटर से दूसरे काउंटर भागना नहीं पड़ता, सब चीजें आपको मिल जाती हैं, भागना पड़ता है ना। हाँ, आपको ज्यादा खर्चा रहता है वहाँ पे as compared to public sector, clear, so that is मैम डॉक्टर
दुकान में रहते हैं। सब That is public and private healthcare services. Okay. Now, effects of insufficient healthcare services. The lack of medical facilities has far-reaching consequences on public health. India is making progress economically and gaining strength on the global stage. But the state of public health is the major reason of concern. The country suffers from high level of malnutrition in both rural and urban areas. The quality of water supply is a matter of concern. लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना इधर अपने स्टेट का, है ना, अपनी कंट्री का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक कि हमें प्रॉपर मेडिसिन जब हमें चाहिए रहती है तो नहीं प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। द कंट्री सफर्स फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन बिकॉज एडुकेट अमाउंट ऑफ फूड इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। द क्वालिटी ऑफ वाटर भी सही नहीं रहती है जिसकी वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ती है एंड इट लीड्स टू डेथ आल्सो समटाइम्स। Condition of sanitization and awareness about the need for sanitization is great. अब सैनिटाइजेशन जो रहती है आप भी देखोगे बहुत सारे घरों में टॉयलेट अवेलेबल नहीं होती है, तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन लोगों को नहीं मिलती है जिसकी वजह से बीमारियां फैलती है। Diseases like jaundice, malaria, cholera are caused by poor sanitization. Jaundice, cholera ये सब जो होते हैं ये poor sanitization के ही कारण होते हैं। Access of poor sanitization facility and safe drinking water are primary requirement in rural areas. Rural areas में proper sanitization होना चाहिए, लोगों के पास अच्छा साफ पानी आना चाहिए ताकि उनकी तबीयत ना बिगड़े। Because of the efforts of government, eradication of polio is a complete example. The growing economy has now not helped to remove malnutrition as many children in the country are malnourished and underweight. These children cannot be expected to contribute towards meaningful development of the country when their health condition is fragile. अब उनकी health condition ही अच्छी नहीं है तो वो आगे चीजें कैसे करेंगे, है ना। सो पोलियो के टीके लगते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली कहीं कहीं पे जाओगे आप सेंटर्स में विलेज में या रूरल एरिया में तो आपको पोलियो के टीके नहीं मिलेंगे, उसके जो डोज हैं वो नहीं अवेलेबल रहेंगे, गवर्नमेंट उसे नहीं सप्लाई करा पा रही फॉर सम और अदर रीजन। सो दीज आर द थिंग्स दैट इफेक्ट द रूरल एरियाज एज मच पॉसिबल, है ना। Now, steps to improve public healthcare centers. Now, there are some steps in which ways you can improve the public healthcare services. पहला तो है they have to develop the partnership with the private healthcare center. अगर वो लोग डेवलप कर ले एक पार्टनरशिप तो क्या होगा, वहाँ के भी डॉक्टर्स जब उन्हें टाइम मिलेगा तो वो इधर आ सकते हैं। इफ यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, इफ कोई चीज अवेलेबल नहीं तो अपन तुरंत प्राइवेट से लेके यहाँ पब्लिक में लोगों को दे सकते हैं। सो देयर शुड बी अ पार्टनरशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर to professionally manage hospitals और other healthcare unit. प्रोफेशनली चीजें को मैनेज करना चाहिए, मींस एक हेड होना चाहिए जो प्रोफेशनली चीजें को देखे कि सारी चीजें ठीक से हो रही है कि नहीं, सारे पेशेंट अटेंड किए जा रहे हैं कि नहीं, पानी सही आ रहा है कि नहीं, सब कुछ एक हेड को देखना चाहिए। Then it is necessary to create awareness in people about the need for health care. अब it is very necessary कि लोगों को पता चले कि हेल्थ केयर अवेयरनेस क्या है, हमारी हेल्थ अगर इफेक्ट होगी, किन चीजों से हमारी हेल्थ इफेक्ट होती है, तो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि इन चीजों से हमारी हेल्थ इफेक्ट हो रही है तो हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट होना चाहिए। The need to maintain hygiene and sanitation to be stressed. हाइजीन और सैनिटेशन पे बहुत स्ट्रेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा बीमारियां 95% बीमारियां इसकी वजह से होती है। सैनिटाइजेशन, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर टॉयलेट अवेलेबल होना चाहिए सबके घर पे। हाइजीन मीन्स क्या, एक क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए। आप कहीं कूड़े के पास रह रहे हो, कूड़ा साफ नहीं कर रहे हो, कहीं गंदगी में पड़े हो, ये नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए ताकि चीजें आपकी सही रहे। Rampant absentee and unprofessionalism have to be dealt with severely. अब मतलब क्या होता है, कभी भी लोग छुट्टी मार देते हैं, कभी भी साफ करने वाले नहीं आए, कुछ काम हो गया नहीं आए, है ना, छुट्टी कर दिए, तो वो नहीं होना चाहिए। एब्सेंटीज नहीं होना चाहिए। काम है तो आपको काम पे आना चाहिए। हम कहाँ पे इन द पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, so these are the points, है ना, कि कैसे हो सकता है। they have to make a partnership with the private sector, है ना। stress should be given on the hygiene and sanitization, proper awareness should be given about the healthcare, and the head should treat the institution professionally
Okay, so these are the things that should be done. Medical tourism. Now, what is medical tourism? Medical tourism is a process by which a person goes for the medical treatment to abroad. मतलब कहीं बाहर जाता है ट्रीटमेंट के लिए, जहाँ रह रहा है वहाँ ट्रीटमेंट नहीं करा रहा, बट कहीं बाहर जाके अपना ट्रीटमेंट करा रहा है. Medical tourism is a recent phenomenon which is gaining popularity and growing rapidly. More and more Western tourists are coming in India for medical treatment. The availability of excellent facilities, technologies, low cost of treatment and medication, and increased compliance with international standards of quality are India a preferred destination for medical treatment. लोग बाहर से आते हैं इंडिया में ट्रीटमेंट कराने. क्यों? क्योंकि यहाँ 3 टाइप के ऑल्टरनेट फैसिलिटीज हैं. अगर डॉक्टर की दवा काम नहीं आई तो लोग कहाँ जाते हैं? क्या दूसरा ऑप्शन रखते हैं? होम्योपैथी, आयुर्वेदा, है ना, चाहते हैं ना. अगर मान लो हॉस्पिटल की दवाई काम नहीं आ रही तो हम होम्योपैथी में चले गए, हम आयुर्वेदा में चले गए. ठीक है. सो हम रामदेव बाबा की और दवाई खाने. most of them prefer that also because people किसी को दवाइयाँ हॉस्पिटल की सूट नहीं करती, so they used to transfer to another facilities so that they can be cured fastly. Most of the patients come for surgeries that would be otherwise expensive in other countries or further treatment in alternate form medicines like Ayurveda. Many big cities. मैम रीवा में मैम सुपर स्पेशलिटी करके कुछ हॉस्पिटल खुला है ना. Many big cities in India boast of the state-of-the-art medical equipment and facilities. Now, alternate form of medical practice. India being an Asian civilization has a tradition of indigenous medical practices with a large following. Ayurveda एक traditional medicine है इंडियन के सबकॉन्टिनेंट में, और एक दूसरी है यूनानी करके एक alternative medication है जो मुस्लिम लोग प्रेफर करते हैं, है ना. आयुर्वेदा जो रहती है वो किस सिम्टम से डील करती है? वो डील करती है, डायग्नोस करती है और ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन ओवरऑल वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल. While Unani is a herbal treatment of the alignment. Herbal treatment means कोई भी ट्री से कोई भी प्लांट ले लिया एंड देन उसका ट्रीटमेंट कर दिया. So यूनानी उस पे फोकस करती है, और आयुर्वेदा पूरा बॉडी का डायग्नोसिस करता है एंड देन उस पे ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं. These are hereditary professions and the knowledge is passed from one generation to the other. Now these are recognized from medical knowledge and several colleges has been set up for studying Ayurveda and Unani forms of treatment. Another alternate medical practice popular in India is homeopathy. Through its origin and it has gained acceptance here. अगर मान लो आयुर्वेदा यूनानी से फायदा नहीं हुआ तो लोग किस पे स्विच करते हैं? होम्योपैथी में. होम्योपैथी में आपने देखा होगा, आप लोग गए ही हो गया होम्योपैथी फॉर द ट्रीटमेंट, है ना. तो होम्योपैथी से मैम घोड़ा चौराहा में है. जो ज्यादा डिसीज होती है वो होम्योपैथी से भी ठीक हो जाती है. सो लोग प्रेफर करते हैं होम्योपैथी में या फिर किसी आयुर्वेदा में जाने का और उससे ट्रीटमेंट लेने का. सो in this way we have completed the chapter. So this was all about the health, that health should be your priority. You should be focused on your health as much as you can, because आज भी अभी आप देख रहे हो कोरोना कितना चल रहा है. Your immunity should be strong so that you can fight with these diseases. मैम उसके 3-4 भाई भी आ गए. So many diseases. येलो फंगस, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, For that you should सब ले डालेगा. you should be healthy enough so that you can fight with this disease. Clear to everyone the chapter? Yes, Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. बहुत अच्छे से. So from next class we'll complete our question answers. Okay. So go through the chapter. हम लेकिन आपने क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए हैं जियोग्राफी चैप्टर 2 के. आप नीचे के रह गए थे. The next class on Thursday we'll do the question answer of this chapter. Clear? Yes, ma'am. Okay. Thank you, class. Have a wonderful day.